السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے ترقی، ٹیکنالوجی، نظم و ضبط اور محنت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے تاریخ کے بدترین حالات کا سامنا کیا، دوسری عالمی جنگ میں مکمل تباہی دیکھی، لیکن چند ہی دہائیوں میں دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور دنیا کی سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ معیشتوں میں شامل ہو گیا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے جاپان کے بارے میں۔ جاپان کو اکثر سورج نکلنے کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ جاپانی زبان میں جاپان کو نیپون یا نیہون بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سورج کی ابتدا۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں جاپان کو لینڈ آف دی رائزنگ سن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ملک مشرقی ایشیا میں بحر الکاہل کے اندر واقع ایک جزیرہ نما ریاست ہے۔ جاپان مکمل طور پر سمندر سے گھرا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد کئی بڑے ممالک موجود ہیں، جن میں چائنا، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا اور رشیا شامل ہیں۔ جاپان دراصل ہزاروں جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے۔ ماہرین کے مطابق جاپان میں تقریباً 6000 سے زیادہ جزائر موجود ہیں، لیکن ان میں سے 4 بڑے جزائر ملکی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ ان جزائر میں ہونشو سب سے بڑا اور سب سے اہم جزیرہ ہے، جہاں جاپان کے کئی بڑے شہر موجود ہیں۔ اگر جاپان کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ تقریباً 3,77,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اگرچہ رقبے کے لحاظ سے جاپان بہت بڑا ملک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جاپان کی ترقی، صنعت اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ جاپان کی سرزمین کا بڑا حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے اور ملک کا تقریباً 70% علاقہ پہاڑی ہے۔ اسی وجہ سے جاپان میں زراعت کے لیے زمین محدود ہے، لیکن جاپانی قوم نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس مسئلے کا بھی حل نکال لیا ہے۔ اب اگر جاپان کی آبادی کی بات کریں تو اس وقت جاپان کی آبادی تقریباً 12 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے زیادہ آبادی والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ جاپان کے لوگوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ انتہائی نظم و ضبط والے، محنتی اور قانون کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جاپان میں جرائم کی شرح دنیا کے بہت سے ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو ہے۔ ٹوکیو نہ صرف جاپان بلکہ دنیا کے سب سے بڑے اور مصروف ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ ٹوکیو کو جدید ٹیکنالوجی، تجارت، فنانس اور ثقافت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کی آبادی کروڑوں میں ہے اور یہاں کی زندگی بہت تیز رفتار سمجھی جاتی ہے۔ ٹوکیو میں جدید عمارتیں، تیز رفتار ٹرینیں اور جدید انفراسٹرکچر دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جاپان کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہے۔ جاپان کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP کئی ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ جاپان کی معیشت بنیادی طور پر صنعت، ٹیکنالوجی، گاڑیوں کی پیداوار اور الیکٹرانکس پر مبنی ہے۔ جاپان دنیا بھر میں اپنی گاڑیوں کی کمپنیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ مثال کے طور پر ٹویوٹا دنیا کی سب سے بڑی کار بنانے والی کمپنیوں میں شامل ہے۔ اسی طرح سونی کمپنی الیکٹرانکس کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، جبکہ ہونڈا بھی جاپان کی مشہور عالمی کمپنی ہے۔ ویڈیو گیمز کی دنیا میں نینٹینڈو کا نام بھی بہت اہم ہے۔ جاپان کو دنیا میں ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بہت بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں جدید روبوٹس، خود کار فیکٹریاں اور جدید ترین مشینری عام استعمال میں ہے۔ جاپان کی تیز رفتار ٹرین جسے شنکینسن کہا جاتا ہے، دنیا کی مشہور ٹرینوں میں سے ایک ہے۔ یہ ٹرین 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار سے چل سکتی ہے اور اپنی وقت کی پابندی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جاپان کے لوگوں کی زندگی بھی دنیا کے بہت سے معاشروں سے مختلف ہے۔ جاپانی معاشرہ نظم و ضبط، احترام اور محنت کی بنیاد پر قائم ہے۔ جاپان میں وقت کی پابندی بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی سے ملنے کے لیے 10 بجے کا وقت دیا گیا ہو تو وہ شخص بالکل 10 بجے ہی پہنچے گا۔ جاپان میں صفائی کا معیار بھی بہت بلند ہے۔ اکثر شہروں میں آپ کو سڑکوں پر کچرا نظر نہیں آئے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جاپان میں کئی جگہوں پر ڈسٹ بن بھی بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ جاپان کا تعلیمی نظام بھی بہت مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ یہاں بچوں کو بچپن سے ہی نظم و ضبط، ذمہ داری اور محنت کی عادت سکھائی جاتی ہے۔ جاپانی اسکولوں میں اکثر بچے خود کلاس روم کی صفائی کرتے ہیں۔ اس عمل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں ذمہ داری اور ٹیم ورک کا جذبہ پیدا ہو۔ جاپان کی صحت کا نظام بھی دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ جاپان میں لوگوں کی اوسط عمر دنیا میں سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے اور یہاں کے لوگ عموماً لمبی عمر پاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ جاپانی خوراک بھی ہے۔
जापानी खानों में समुद्री ग़िज़ा, सब्जियां और हल्की खुराक शामिल होती है। जापान के मशहूर खानों में रैमन, सुशी और टेम्पुरा शामिल हैं, जो दुनिया भर में बहुत पसंद किए जाते हैं। अगर जापान की तारीख की बात की जाए तो ये मुल्क हज़ारों साल पुरानी तहजीब रखता है। जापान ने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, जिनमें सामुराई जंगजुओं का दौर भी शामिल है। जापान की तारीख में एक अहम वाक़या दूसरी आलमी जंग भी था। जंग के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे, जिसके नतीजे में जापान को शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस तबाही के बावजूद जापान ने चंद दिहाइयों में हैरत अंगेज तरक्की की और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हो गया। जापान कुदरती आफात के हवाले से भी एक हसास मुल्क है। यहाँ अक्सर ज़लज़ले, सुनामी और आतिश फ़िशां फटने के वाक़यात पेश आते रहते हैं। इसके बावजूद जापान ने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक मजबूत डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, जिसकी वजह से नुकसान को कम से कम रखा जाता है। जापान सियाहत के लिहाज से भी एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ कदीम मंदिर, जदीद शहर, खूबसूरत पहाड़ और दिलकश कुदरती मनाजिर मौजूद हैं। जापान का मशहूर पहाड़ माउंट फ्यूजी दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ों में शुमार होता है और ये जापान की एक अलामत समझा जाता है। जापान की सकाफत भी बहुत मुनफरिद और दिलचस्प है। यहाँ रिवायती त्यौहार, ख़ास लिबास और मखसूस रस्म व रिवाज आज भी ज़िंदा हैं। जापानी लोग अपनी सकाफत और रिवायात का बहुत एहतराम करते हैं और जदीद ज़िंदगी के बावजूद अपनी पुरानी रिवायात को नहीं भूलते। जापान में एक अजीब मगर दिलचस्प रिवायत भी पाई जाती है, जिसे वेंडिंग मशीन कल्चर कहा जाता है। पूरे मुल्क में लाखों वेंडिंग मशीनें मौजूद हैं, जहां से लोग मशरूबात, खाने पीने की चीज़ें, खिलौने और यहां तक के बाज़ जगहों पर छतरियां भी खरीद सकते हैं। अंदाज़ा लगाया जाता है कि जापान में तकरीबन हर चंद मीटर के फासले पर एक वेंडिंग मशीन मिल जाती है। ये निज़ाम जापान की टेक्नोलॉजी और अवामी सहूलतों की बेहतरीन मिसाल समझा जाता है। जापान के लोगों की ज़िंदगी में एहतराम और अदब को बहुत अहमियत दी जाती है। जापान में लोग एक दूसरे को सलाम करने के लिए अमूमन झुक कर सलाम करते हैं, जिसे जापानी ज़बान में बाउं कहा जाता है। ये अमल एहतराम, आजिज़ी और अदब की अलामत समझा जाता है। जापान में जितना ज़्यादा एहतराम ज़ाहिर करना हो, इतना ज़्यादा झुककर सलाम किया जाता है। जापान में काम करने का कल्चर भी दुनिया के दूसरे ममालिक से काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती समझे जाते हैं और अक्सर लंबे औकात तक काम करते हैं। इसी वजह से जापान में एक ख़ास लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, जिसे कारोशी कहा जाता है। कारोशी का मतलब है ज़्यादा काम करने की वजह से मौत। अगरचे हुकूमत ने अब इस मसले को कम करने के लिए कई कवानीन मुतारिफ करवाए हैं, लेकिन ये हकीकत जापान के मेहनती मुआशरे की अक्कासी करती है। जापान में फितरत से मोहब्बत भी बहुत आम है। जापान में हर साल बहार के मौसम में एक ख़ास त्यौहार मनाया जाता है, जिसे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहा जाता है। इस मौका पर पूरे मुल्क में चेरी के दरख्तों पर खूबसूरत गुलाबी और सफ़ेद फूल खिल जाते हैं और लोग पार्कों में जमा होकर इन फूलों की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इस त्यौहार को जापानी सकाफत में बहुत अहमियत दी जाती है। जापान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां रोबोट टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। जापान में कई ऐसे रोबोट तैयार किए जा चुके हैं जो अस्पतालों, होटलों और फैक्ट्रियों में इंसानों की मदद करते हैं। कुछ रोबोट तो इंसानों की तरह बात भी कर सकते हैं और जज्बात का इजहार भी करते हैं। इसी वजह से जापान को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का मरकज़ भी कहा जाता है। जापान में एक दिलचस्प चीज़ कैप्सूल होटल भी है। ये ऐसे होटल होते हैं जहां आम कमरों की बजाय छोटे छोटे कैप्सूल नुमा सोने की जगह होती हैं। हर शख्स को एक अलग कैप्सूल मिलता है, जिसमें बिस्तर, लाइट और कभी कभी छोटा टीवी भी होता है। ये होटल ज़्यादातर उन लोगों के लिए होते हैं जो रात देर तक काम करते हैं या जिनकी आखिरी ट्रेन छूट जाती है। जापान के बड़े शहरों जैसे कि टोक्यो में ऐसे होटल काफ़ी आम हैं। जापान में बिल्लियों से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जापान में एक पूरा जजीरा है जिसे कैट आइलैंड कहा जाता है, जहां इंसानों से ज़्यादा बिल्लियां रहती हैं। यहाँ सयाह ख़ास तौर पर बिल्लियों को देखने और उनके साथ वक्त गुजारने आते हैं। जापान में खुदकार टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की याफ्ता है कि कई रेस्टोरानों में वेटर की जगह मशीनें इस्तेमाल होती हैं। बाज़ जगहों पर ग्राहक टच स्क्रीन के ज़रिए खाना ऑर्डर करते हैं और फिर रोबोट या खुदकार कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए खाना इन तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरह जापान टेक्नोलॉजी को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की एक बड़ी मिसाल पेश करता है।
जापान में एक अजीब मगर दिलचस्प सर्विस भी मौजूद है जिसे किराए के दोस्त कहा जाता है। अगर किसी शख्स को किसी तकरीब में साथ जाने के लिए दोस्त या साथी की ज़रूरत हो तो वो पैसे देकर किसी शख्स को अपने साथ ले जा सकता है। ये सर्विस ज़्यादातर तन्हाई महसूस करने वालों के लिए बनाई गई है। जापान में साइकिल चलाना भी बहुत आम है। जापान के कई शहरों में लोग रोज़ाना दफ्तर जाने के लिए साइकिल इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि जापान के शहरों में सड़कें और ट्रैफिक का निज़ाम बहुत मुनज़्ज़म है और साइकिल के लिए अलग रास्ते भी बनाए गए हैं। जापान में एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि वहाँ के बहुत से रेस्तोरानों के बाहर खाने के प्लास्टिक के मॉडल रखे हुए होते हैं। ये मॉडल असल खाने के बिल्कुल हकीकी शक्ल में बनाए जाते हैं ताकि ग्राहक आसानी से समझ सकें कि उन्हें क्या ऑर्डर करना चाहिए। ये रिवायत जापान में कई दहाइयों से जारी है। जापान में बहुत सी गर्म पानी की कुदरती झीलें भी मौजूद हैं जिन्हें ओनसन कहा जाता है। लोग इन गर्म पानी के चश्मों में नहाने के लिए दूर दूर से आते हैं क्योंकि ये न सिर्फ आरामदा होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। दोस्तों, जापान दरअसल इस बात की मिसाल है कि अगर कोई कौम मेहनत, नज़्म ज़ब्त और तालीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो वो किसी भी मुश्किल से निकलकर तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंच सकती है। आज जापान दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है और बहुत से ममालिक इसकी तरक्की के मॉडल से सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क के बारे में देखना चाहते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।